first part. What we discussed in first part was that there was a railway carriage, and in that some of the occupants were there, and that small girl was there, small boy, and a smaller girl along with their aunt, and there was a strange person also, a stranger man, and these these three children were disturbing the aunt. They were disturbing in the sense they were just irritating. They were asking different questions. At the same time, they were irritating. Somehow they were irritating the stranger man also. So their aunt decided to tell them a story in order to make them quiet. But when she started the story, the children were not that much interested in her story, and they thought that it is not that much nice. So the aunt, when she was explaining that time, the stranger man thought that the way aunt is explaining the story is not that much good. So he told that you don't seem like the good storyteller. So aunt asks him that why don't you tell a story? So when the children also started forcing him, so he started the story. He told the story of a girl who was very good. So let us continue the story now. Up to this we had learned in first part. Now we'll continue the story. And yes, the name of girl was Bertha. She was so good, continued the bachelor. Bachelor ने कहा कि वो बहुत अच्छी थी. That she won several medals for goodness, which she always wore pinned on to her dress. और वो इतनी अच्छी थी कि उसको कुछ मेडल्स भी मिले थे उसके अच्छाई के कारण, जिसको वो हमेशा अपने ड्रेस के साथ वेयर करती थी. There was a medal for obedience, another medal for punctuality, and a third for good behavior. तो उसको 3 मेडल मिले थे. एक था ओबीडियंस के कारण, एक था आप कह सकते हैं कि पंक्चुअलिटी के कारण, और तीसरा था उसका गुड बिहेवियर के कारण, अच्छे बिहेवियर के कारण. ओबीडियंस में से आपको पता होगा डिसिप्लिन होता है. They were large metal medals and they clicked against one another as she walked. वो लार्ज मेटल के थे मेडल्स, और वो हमेशा एक दूसरे के साथ टच करके आवाज़ करते थे जब भी वो चलती थी. तो No other child in the town where she lived had as many as 3 medals. So everybody knew that she must be an extra good child. तो वहाँ पर जहाँ पर वो रहती थी, जिस टाउन में वो रहती थी, तो वहाँ पर किसी भी दूसरे बच्चे के पास इतने मेडल्स नहीं थे जितने उसके पास थे, 3 मेडल्स. तो सबको ये पता था कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड है. हॉरिबली गुड कोटेड सैरल. सैरल ने कहा कि हॉरिबली गुड. तो जैसे कि हम लास्ट वीडियो में देखा था, जो स्ट्रेंजर मैन था उसने यही कह के उसको बोला था कि हाँ शी वॉज हॉरिबली गुड. तो उसी को रिपीट किया सैरल ने. एवरीबडी टॉक्ड अबाउट हर गुडनेस. सब उसकी अच्छाई के बारे में बात करते थे. एंड द प्रिंस ऑफ द कंट्री गॉट टू हियर अबाउट इट. और प्रिंस ने भी इस बारे में सुना. And he said that as she was so very good, she might be allowed once a week to walk in his park, which was just outside the town. और वो इतनी अच्छी थी, इसीलिए वो जो प्रिंस था उसने कहा कि वो मेरा पार्क है उसमें वीक में एक बार आके वॉक कर सकती है, उसमें घूम सकती. और वो पार्क टाउन के बाहर था. It was a beautiful park and no children were ever allowed in it. और वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा पार्क था, पर उसमें कोई भी बच्चे अलाउड नहीं थे. सो इट वॉज अ ग्रेट ऑनर फॉर बर्था टू बी अलाउड टू गो देयर. और जब कोई भी चिल्ड्रन वहाँ अलाउ नहीं थे, किसी के लिए भी वो ओपन नहीं था, और उस टाइम बर्था के लिए जाना एक तरीके से उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट वाली बात थी, ऑनर वाली बात थी. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर. हाउ डिड प्रिंस रिवार्ड बर्था? हाउ डिड प्रिंस रिवार्ड बर्था? Were there any sheep in the park? Demanded Sarah. Sarah ने पूछा क्या वहाँ पे कोई sheep थी पार्क में? No, said the bachelor. There were no sheep. उसने कहा कि वहाँ पे कोई भी sheep नहीं थी. But there were other small harmless animals in the park. उसने कहा कि लेकिन वहाँ पर कुछ दूसरे छोटे छोटे ऐसे एनिमल्स थे जो किसी को हार्म नहीं करते थे. The storyteller paused to let a full idea of the park's treasures sink into the children's imagination. तो स्टोरी टेलर ने थोड़ी देर वेट किया, थोड़ा पॉज दिया, उसने ब्रेक दिया, जिससे जो बच्चे थे, जो तीनों उनके सुन रही थी उनकी स्टोरी, उनकी इमेजिनेशन में आ जाए कि किस तरह का पार्क था, वो कैसा था, कैसे एनिमल्स, कैसे फ्लावर्स, प्लांट, सब चीज़ें उनकी इमेजिनेशन में आ जाए. देन ही रिज्यूम. फिर उसने कंटिन्यू किया. Bertha was rather sorry to find that there were no flowers in the park.
बर्ता को ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, उसको दुख हुआ है देख कर कि वहाँ पे कोई भी फ्लावर नहीं थे उस पार्क में. She had promised her aunts with tears in her eyes that she would not pick any of the kind prince flowers, and she had meant to keep her promise. So of course it made her feel real silly to find that there were no flowers to pick. जब वो आ रही थी तब उसने उसकी आंट से प्रॉमिस किया था रोते हुए कि मैं कोई भी फ्लावर पिक नहीं करूँगी कि प्रिंस का जो गार्डन है उसमें से, और उसको अपना प्रॉमिस याद था, लेकिन उसको लग रहा था कि कितना सिली है क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लावर ही नहीं है, तो मैं पिक क्या करूँ, तोड़ूँ क्या जब यहाँ पे कोई भी फूल नहीं है. Why weren't there any flowers? वहाँ पे फूल क्यों नहीं थे? Because the animals had eaten them all, said the bachelor promptly. बैचलर ने कहा, बैचलर में वो जो मैन था उसने कहा क्योंकि वहाँ जितने भी एनिमल्स थे ना उन सब ने वहाँ के जो फ्लावर्स थे उनको खा लिया था. The gardeners had told the prince that you couldn't have animals and flowers, so he decided to have animals and no flowers. गार्डनर ने ये चीज़ कही थी प्रिंस से कि आप या तो एनिमल्स को अपने पार्क में आने दो या फिर फ्लावर्स को रहने दो. तो उसने सोचा कि नहीं, मैं एनिमल्स के लिए उसने डिसीजन लिया और इसी कारण से कोई भी फ्लावर वहाँ पर नहीं था. There were a murmur of approval at the excellence of the prince's decision. So many people would have decided the other way. काफ़ी लोगों ने धीरे धीरे विस्पर करते हुए ठीक है अप्रूव किया, ना चाहते हुए भी, बट सबको ऐसा लग रहा था कि एनिमल की जगह क्या होना चाहिए, वहाँ पर फ्लावर्स होने चाहिए. ज़्यादातर सबको यही लग रहा था कि फ्लावर होना चाहिए. There were lots of other delightful things in the park. लेकिन और भी बहुत सी अच्छी चीज़ें थी पार्क में. There were ponds with gold and blue and green fish in them, and trees with beautiful parrots that said clever things at a moment's notice, and hummingbirds that hummed all the popular tunes of the day. तो ठीक है फ्लावर्स नहीं थी, लेकिन वहाँ पे जो फिश थी वो डिफरेंट कलर्स की थी. ट्रीज अच्छे बहुत सुंदर सुंदर ट्रीज थे, एट द सेम टाइम पैरट्स थे ब्यूटीफुल से, और वो इतने क्लेवर थे कि वो कुछ भी जो होता था वहाँ पे, सपोज कुछ भी सिचुएशन हुई तो वो उसको बोलने लग जाते थे, वो ऐसा बोलते थे वो. एंड कुछ बर्ड्स थी गुनगुनाने वाली, हमिंग करने वाली बर्ड्स थी, गाने वाली बर्ड्स थी जो बहुत ही पॉपुलर ट्यून्स गाती थी, हम करती थी. बर्ता वॉकड अप एंड डाउन एंड एन्जॉयड हरसेल्फ इमेंसली. बर्ता ऊपर नीचे हर जगह जा रही थी और अपने आप को अच्छे से मीन्स हैप्पीनेस के साथ पूरी तरह से वो अपने आप को एंजॉय कर रही थी, उस पार्क को एंजॉय कर रही थी. एंड थॉट टू हरसेल्फ, और सोचा उसने अपने आप से, इफ आई नॉट सो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गुड, I should not have been allowed to come into this beautiful park and enjoy all that there is to be seen in it. उसने सोचा कि अगर मैं इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती तो शायद मुझे इस ब्यूटीफुल पार्क में आने के लिए अलाउ नहीं किया जाता और ना ही मैं इस खूबसूरत चीज़ को एंजॉय कर पाती, उसको देख पाती. And her 3 medals clinked against one another as she walked and helped to remind her how very good she really was. और उसी टाइम पे उसकी जो तीनों मेडल्स थे वो एक दूसरे से टकरा के आवाज़ करने लगे और उसको ये चीज़ रिमाइंड किया कि हाँ वो कितनी अच्छी है. Just then an enormous wolf came prowling into the park to see if it could catch a fat little animal for its supper. और उसी टाइम पे एक enormous मीन्स बहुत ही बड़ा सा वुल्फ आया, एकदम डेंजर सा भयानक सा वुल्फ आया, और वो क्या कर रहा था, वो मूव अबाउट रेस्टलेसली मीन्स वो इधर उधर घूम रहा था पार्क में ये देखने के लिए कि उसको कुछ खाने के लिए, सपर मीन्स खाने के लिए उसको कुछ कोई सा एनिमल मिल जाए. द फर्स्ट थिंग दैट इट सॉ इन द पार्क वॉज बर्था, और सबसे पहली चीज़ उसने जो देखी वो बर्था थी. हर पिनाफोर वॉज सो स्पॉटलेसली वाइट एंड क्लीन दैट इट कुड बी सीन फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस. पिनाफोर मीन्स आप कह सकते हैं एक काइंड ऑफ ड्रेस होती है, तो जो उसकी ड्रेस थी वो इतनी क्लीन थी, वाइट थी कि वो दूर से भी नज़र आ सकती थी. बर्ता सॉ द वुल्फ एंड सॉ इट वॉज स्टीलिंग टूवर्ड्स हर. बर्ता ने जैसे ही वुल्फ को देखा और तो उसने क्या देखा कि वो मीन्स धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा है. एंड शी बिगेन टू विश दैट शी हैड नेवर बीन अलाउड टू कम इनटू द पार्क. और वो ये सोचने लगी काश मुझे कभी इस पार्क में आने के लिए अलाउ ही नहीं किया जाता. शी रैन एज हार्ड एज शी कुड. वो जितना तेज़ और जितना जल्दी भाग सकती थी वहाँ से वो भागी. And the wolf came after her with huge leaps and bounds. ये leaps and bounds में से आप कह सकते हैं जैसे वो जंप करता है ना, तो उस तरह से उसने बड़ी बड़ी जंप के साथ उसका पीछा किया. She managed to reach a shrubbery of myrtle
myrtle bushes and she hid herself in one of the thickest of the bushes. जैसे तैसे वो एक ऐसे एरिया में आई जहाँ पर बहुत सारे shrubs थे, स्मॉल प्लांट्स थे, कांटे वाले प्लांट्स कह सकते हैं आप. तो वो वहाँ पर पहुँची और मर्टल का मतलब होता है बुश विथ शाइनी लीव्स, जिसकी लीव्स शाइन करती है. तो वो मर्टल बुश तक पहुँची और उसके बाद वो एक थोड़ी सी थिक बुश थी उसके पीछे छुप गई. द वुल्फ केम स्निफिंग अबाउट अमंग द ब्रांचेस. वो थोड़ा स्निफ मीन्स आप कह सकते हैं जैसे वो स्मेल लेता है ना और आवाज़ करता है, तो स्मेल और आवाज़ करते करते वो ब्रांचेस के पास तक आया, उसके बीच में आया. इट्स ब्लैक टंग लॉलिंग आउट ऑफ इट्स माउथ. उसकी जो टंग थी वो बाहर गिर रही थी, बाहर आ रही थी. एंड इट्स पेल ग्रे आइज ग्लेयरिंग विद रेज. और उसकी जो आंखें थी वो एकदम गुस्से से, एकदम आप कह सकते हैं उसका ग्रे कलर था, पेल ग्रे कलर था, मीन्स हल्का हल्का ग्रे कलर था. बर्था वॉज टेरिबली फ्राइटन. वो बुरी तरह डर गई थी. एंड थॉट टू हर सेल्फ. वो सोच रही थी, इफ आई हैड नॉट बीन सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड आई शुड हैव बीन सेफ इन टाउन एट दिस मोमेंट. उसने कहा अगर मैं इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं होती तो शायद मैं अभी अपने टाउन में सेफ होती इस टाइम पर. However, the scent of the myrtle was so strong that the wolf could not sniff out where Bertha was hiding. और जो सेंट था मीन्स वहाँ की जो खुशबू थी उन बुशेस की, तो उसके कारण वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जो वुल्फ था वो स्मेल नहीं कर पाया कि बर्ता कहाँ पर है. एंड द बुशेस वर सो थिक दैट ही माइट हैव हंटेड अबाउट इन देम फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट कैचिंग साइट ऑफ हर. और वो बुशेस इतनी थिक थी कि ऐसा लग रहा था कि अगर वो बहुत ज़्यादा देर तक भी उसको ढूंढता तब भी वो उसको नहीं पकड़ पाता, उसको नहीं देख पाता. सो ही थॉट ही माइट एज वेल गो ऑफ एंड कैच अ लिटिल एनिमल इंस्टेड. तो उसने सोचा कि ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ और इसकी जगह मैं किसी और एनिमल को ही पकड़ लेता हूँ. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर. Why was the wolf unable to trace Bertha? Why was the wolf unable to trace Bertha? Okay, आगे बढ़ते हैं हम. Bertha was trembling very much at having the wolf prowling and sniffing so near her. एकदम धूज गई थी, डर गई थी, शिवर हो रही थी ये देखकर कि जो वुल्फ है वो एकदम इतना पास है उसके. And she trembled, the medal for obedience clinked against. और जैसे ही वो एकदम धूजी, शिवर हुई, वैसे ही जो उसके मेडल्स थे वो पहले तो उसका ओबीडियंस वाला मेडल उसके गुड कंडक्ट और पंक्चुअलिटी वाले मेडल से टकराया. द वुल्फ वॉज जस्ट मूविंग अवे. वुल्फ जाने ही वाला था when he heard the sound of the medals clinking and stopped to listen. और जैसे ही वो जाने वाला था वैसे ही उसको मेडल्स की आवाज़ आई और वहाँ रुक गया वो सुनने के लिए. They clinked again in the bush quite near him. और वापस से वो जो मेडल्स से उनका वापस से साउंड आया एक दूसरे से टकराने का, वो उस बुश में जो उसके जस्ट पास थी. He dashed into the bush. उसने उस बुश में एकदम से वो गया. His pale grey eyes gleaming with ferocity and triumph. अब उसके सामने मार्था थी और उसकी जो आईज थी वो चमक रही थी, शाइन कर रही थी. किसका के कारण? क्योंकि वो एकदम मीन्स उसकी जो आंखें थी वो एकदम इतनी खतरनाक से लग रही थी, वायलेंट लग रही थी, मारने वाली, और उसको जीत मिल गई थी, ट्रायम्फ. एंड ड्रैग्ड बर्था आउट. उसने बर्था को बाहर लिया, खींचा. एंड डिवोर्ड हर टू द लास्ट मॉर्सल. और उसको तब तक वो खाता रहा जब तक उसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो गए. All was left of her were her shoes, bits of clothing and 3 medals for goodness. जो बचा था वो सिर्फ ये था कि उसके शूज़, कुछ कपड़े के टुकड़े और उसके वो 3 मेडल्स. The story began badly, said the smaller of the small girls. जो सबसे छोटी गर्ल थी उसने कहा कि स्टोरी तो बहुत बुरी है, मीन्स बट स्टार्टिंग तो उसको लगा कि ये तो बहुत बुरी सी है, मीन्स अनइंटरेस्टिंग है, कोई मतलब नहीं है इसका, बोरिंग है. लेकिन बट इट हैड अ ब्यूटीफुल एंडिंग. लेकिन उसको इसका एंड तो पसंद आया. इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी दैट आई हैव एवर हर्ड. उसने कहा कि ये सबसे अच्छी स्टोरी जो मैंने आज तक सुनी. सेड द बिगर ऑफ द स्मॉलर गर्ल्स विद इमेंस डिसीजन. जो सबसे मीन्स छोटी गर्ल थी उसने तो ये कहा कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छी स्टोरी है. और जो बड़ी गर्ल थी उसने क्या कहा कि ये सबसे अच्छी स्टोरी आज तक मैंने जो सुनी वो सबसे अच्छी स्टोरी यही है. पूरे फुल डिसीजन के साथ उसने यही कहा. ओके, आगे बढ़ते हैं हम.
इट इज़ द ओनली ब्यूटिफुल स्टोरी आई हैव एवर हर्ड, सेड सैरल। तो सैरल ने भी यही कहा कि ये सबसे अच्छी स्टोरी है, सिर्फ ऐसी ही एक अच्छी सी स्टोरी जो मैंने आज तक सुनी। A dissident opinion came from aunt, लेकिन aunt जो थी उसका ओपिनियन तो कुछ और था, उसका वो एग्री नहीं हो रही थी। A most improper story to tell to young children, उसने कहा कि सबसे improper स्टोरी है जो छोटे बच्चों को कही जाती है। You have undermined the effect of years of careful teaching, आपने क्या किया, जो मैंने अब तक एक बेस तैयार किया था अच्छी टीचिंग का, उसको आपने अंडरमाइन कर दिया। अंडरमाइन मीन्स आप कह सकते हैं कि वीक कर दिया, उसको, उस बेस को वीक कर दिया। एट एनी रेट, सेड द बैचलर, बैचलर ने कहा किसी भी कीमत पे। कलेक्टिंग हिज बिलोंगिंग्स प्रिपरेटरी टू लिविंग द कैरियज, और ये बोलते बोलते वो क्या कर रहा था, अपनी चीज़ों को कैरी कर, मीन्स बिलोंगिंग्स को कलेक्ट कर रहा था। आई केप्ट दैम क्वाइट फॉर 10 मिनट्स, उसने कहा कि किसी भी कीमत पे मैंने एटलीस्ट उनको 10 मिनट तक चुपचाप रख दिया, चुपचाप रहने दिया। विच वॉज मोर देन यू वर एबल टू डू, जो आप नहीं कर पाई वो मैंने कर दिया। अनहैप्पी वुमन, उसने कहा कि तुम अनहैप्पी वुमन हो। ही ऑब्जर्व टू हिमसेल्फ एज ही वॉक डाउन द, अच्छा उसने बोला नहीं, उसने ऐसा ऑब्जर्व किया कि ये अनहैप्पी वुमन ही है जो हमेशा कहीं ना कहीं फॉल्ट निकालती रहती है। ही ऑब्जर्व टू हिमसेल्फ एज ही वॉक डाउन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेम्पलकोम स्टेशन, उसका स्टेशन आ गया था और वो ऑब्जर्व कर रहा था। फॉर द नेक्स्ट 6 months or so, those children will assail her in public with demands for an improper story. और उसने सोचा मन में कि इस लेडी को आने वाले 6 months तक या कुछ टाइम तक जो बच्चे हैं वो परेशान करते रहेंगे अच्छी स्टोरी सुनने के लिए, या इम्प्रॉपर स्टोरी, एटलीस्ट स्टोरी सुनने के लिए जो उनके लिए इम्प्रॉपर ही होगी। Your last question is, find the meaning of the following words and make sentence using them. First, prowling. Second, assail. Third, bristled. Fourth, immense. I hope today's video is liked by you. In case of any doubt or difficulty, feel free to ask me. Take care, stay safe.